Now the LH, the concentration on the LH concentration on the 13th day, उसको हम लोग LH peak कहते हैं. Okay, so the LH concentration on the 13th day is क्या? The LH concentration on the 13th day is enough to maintain the corpus luteum for क्या? So the LH concentration on 13th day is enough to maintain corpus luteum for 8 to 10 days. समझ रहे हो? तो अगर हम लोग 13th डे को LH पीक मानते हैं तो 14th डे ओव्यूलेशन होगा. ओके, 2 दिन लग जाएंगे कॉर्पस ल्यूटियम बनने में. तो 15 16, तो 16 प्लस 8 होची 24 एंड 16 प्लस 10 होची 26. ओके, तो इसलिए द LH concentration on 13th day is enough to maintain the CL for 8 to 10 days. Hence it will secrete क्या? Hence it will secrete progesterone hormone till the what? Hence it will secrete progesterone hormone till the कौन सा डे? 26th day of menstrual cycle. तो ये 28 डे वाला साइकिल है. ओके, 28 day cycle. Okay, understood? So hence it will secrete progesterone till the 28 day cycle of 28 day cycle. ठीक है, तो ये 26 दिन तक चलता रहेगा. Understood? So this is the case. Now क्या होगा? 27वें दिन क्या होगा? बोलिए. On the 27th day क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन लेवल falls suddenly. ओके, धड़ से खत्म हो जाएगा. ओके, तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल falls suddenly. ओके, this fall is associated as a signal for the preparation of menses. Okay, preparation of menses. तो अब नो प्रोजेस्टेरॉन नो मेंटेनेंस. तो अब आपको ये जो कॉर्पस स्ट्रैटम फंक्शनल इसको तोड़ना पड़ेगा एंड आपका 1-2 दिन में ब्लीडिंग हो जाएगा. तो जिस दिन ब्लीडिंग हुआ आपका अगला साइकिल आ जाएगा. सो दिस इज व्हाट इज क्या? कॉर्पस लुटियम. नाउ उसके बाद हम लोग लिखेंगे तो आफ्टर degeneration the corpus luteum is known as क्या? corpus albicans. ठीक है, तो एक बार डिजेनरेशन हो गया उसको अब हम क्या बोलेंगे? corpus albicans. कोई शक? No, sir. No, This sir. is how we complete folliculogenesis. तो आपका folliculogenesis finish. Fine. So if you have any doubts, you can ask. Otherwise, we will go to the next topic. तो हमने folliculogenesis खत्म कर दिया. So basically, that is also known as the LS of the ovary. है कि नहीं? चलिए फटाफट. I'll give you 1-2 minutes. So no delay. And I request all those silent. Now next case क्या है? तो it is known as
menstrual cycle because generally, okay, because generally it is, because generally it occurs occurs with the periodicity of क्या 28 days, है कि नहीं। अब आप देखो आप ही के क्लास में कितने बच्चे होंगे जिनका 28 डे पीरियड नहीं होगा, तो इसका मतलब हम एनसीईआरटी को क्या गलत बोल दें, है कि नहीं। बट ऐसा वेरिएशन होता है, then some of you will have variations, okay, so like that. So it is known as menstrual cycle because generally it occurs with a periodicity of 28 days. तो इसलिए कैसे नाम पड़ा भैया, पर मंथ, ओके, इसको पर मेंसेम का मीनिंग है पर मंथ, सो मेंसेस, सो menstrual पीरियड या साइकिल। और मैं नाम कैसे पढ़ा, तो इसलिए पर मेंसेम से पढ़ गया, पर मंथ से पढ़ गया पर मेंसेम, इसलिए ब्लीडिंग को मेंसेस बोलते हैं एंड साइकिल को मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। नाउ इट बिगिंस with menarche, okay, so it begins with menarche, that is called the first menstrual flow. Now Nishipadma, can you tell me menarche is the beginning of the first cycle na second cycle? बताओ क्या आप समझते हो, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट साइकिल ना सेकंड साइकिल? Sir, second cycle. यस, व्हाई, सेकेंड बिकॉज साइकिल बिकॉज पहले से मेंस्ट्रुएशन जो चुका होगा, कुछ बिकॉज वही तो आपका जो इंडिकेशन है ये सेकंड साइकिल का बिगिनिंग है। व्हाई, बिकॉज सिंस द फर्स्ट एग इज लॉस्ट, okay, it has happened, okay, it begins with menarche, okay, that is also known as the first menstrual flow, okay, which occurs after puberty, okay. Menarche is actually the menses of the second cycle, ओके, तो ये याद रखना, दो हम लोग उसको फर्स्ट इवेंट बोलते हैं बट ये एक्चुअली रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट साइकिल है। तो मेनार्क इज एक्चुअली द मेंसेस ऑफ द सेकेंड साइकिल, ओके, फुल स्टॉप। इट indicates that the first egg is lost without completing क्या meiosis and oogenesis. Is it understood? Now, तो इसलिए इसके बारे में हम अब जाएंगे, बट हम लोग एक थोड़ा तो नाउ लेट अस ड्रॉ, एक्चुअली जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये हम अक्स को दो क्या दो स्टेजेस में बांट सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज अंडरस्टैंड। सो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम दो पीरियड्स में बांट सकते हैं, ओके, टू हाफ्स। अगेन आई विल डू द 28 डे साइकिल, फिर उसको हम एसोसिएट करेंगे। तो सपोज ये आपका दो हाफ्स है, ओके, सपोज दीज आर द टू हाफ्स, फाइन, एंड इसमें हम एक पाई सेक्शन काटेंगे।
सो ये आपका एक्चुअली एनसीईआरटी वाला साइकिल है. ओके, जेसीईआरटी वाला साइकिल तो आपको चाहिए नहीं, इसलिए दिस इज द एनसीईआरटी साइकिल. नाउ इसमें हम एक छोटा सर्कल कट करेंगे बीच में. फाइन. चलिए, तो ये आपका 3 स्टेजेस है. नाउ अगर ये 28th डे है, फाइन, तो ये क्या हो जाएगा? दिस इज द फर्स्ट डे, दिस इज द 5th डे, दिस इज द 14th डे. ओके, तो ये आपका साइकिल है. नाउ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग एम फेज बोलते हैं. ओके, दिस इज द मेंस्ट्रुअल फेज. इसको हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, एंड इसको हम लोग बोलते हैं लुटियल फेज. कोई शक? तो ये आपका फॉलिकुलर फेज आ गया, एंड इसको हम बोलते हैं लुटियल फेज. अंडरस्टूड? सो दीज आर द 3 स्टेजेस. फाइन. तो ये आपका मेंस्ट्रुअल स्टेज है. फाइन, दिस इज द मेंस्ट्रुअल स्टेज. इसको हम लोग बोलते हैं क्या? प्रोलिफरेटिव फेज या क्या? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉलिक्यूलर फेज. ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिक्यूलर फेज. ठीक है जी. So this is the case. Now ये जो फेज है इसको हम बोलेंगे लुटियल फेज. क्लियर? सो दिस इज योर एनसीईआरटी साइकिल. ओके, समझ में आया? बट अगर हम जेसीईआरटी साइकिल देखेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा? तो इसमें देखो, अब इस साइकिल में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको बाद में समझ में आएगा. चलिए, तो ये हो गया. तो अब हम लोग जेसीईआरटी साइकिल करेंगे ना. जेसीईआरटी साइकिल में थोड़ा ज्यादा डिफरेंसेस हैं. सो दिस इज द, सपोज अगेन 28 डे साइकिल विल बी मेकिंग, एंड ये हमारा क्या हाफ है. फाइन, सपोज दिस इज द हाफ. ना अब व्हाट आई डू, मैं यहाँ एक पाई सेक्शन काटता हूँ, मैं यहाँ एक और पाई सेक्शन काटता हूँ, मैं यहाँ एक और पाई सेक्शन काटता हूँ, एंड मैं यहाँ एक और पाई सेक्शन काटता हूँ. सो दिस इज द जेसीईआरटी साइकिल. एक्चुअली इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं. ओके, नाउ क्या डिफरेंसेस है देख लिया जाए. तो अब ये है सपोज 28th डे. ओके, तो ये है आपका 5th डे, है कि नहीं? एंड ये है आपका सपोज 11th डे. फाइन. तो दिस इज द 14th डे. यहाँ आपका ओव्यूलेशन होगा. ठीक है. उसके बाद ये है 16th डे. बस. तो ये है सपोज 16th डे. फाइन. एंड ये है सपोज 26th डे. कैन यू टेल मी व्हाई आई हैव कट इट लाइक दिस? बताइए, कोई आइडिया है आपको? सुब्रत, इसको काटने का क्या रीजन है ऐसा? सर फेजेस के हिसाब से. नहीं, बट फेजेस तो आपका वही 3 बुक में दिया है. बट आर ऑल दीज 14 days सेम?
No sir, variable होंगे. Then how we can write like this? समझ रहे हो? तो यही मजा है. तो इसलिए आपको अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है तो आप ये पढ़ेंगे, समझना है तो ये समझेंगे. अभी आपका फ्रीडम है, आपको क्या करना है. समझ में आया? सो दिस इज द केस. ओके, फर्स्ट डे कहाँ गया? ये फर्स्ट डे है. रेडी? तो ये आपका कंसेप्ट है. तो इसलिए अगेन एज द स्टैंडर्ड प्रोसेस, सो दिस इज आके, तो इसका कुछ अलग नेमिंग हो जाएगा. फाइन. So now this is called menstrual period. ये तो हमारा फिक्स्ड है, ये menstrual period है. This is called proliferative या follicular phase. इसको मैं प्री ओव्यूलेटरी Ovulatory. एंड समझ रहे हो? Yes. ये प्री ओव्यूलेटरी पीरियड है. एंड ये वाला पार्ट क्या है? Post ovulatory. ओव्यूलेटरी. पोस्ट एंड ओव्यूलेटरी. ये पीरियड क्या है? लुटियल. Luteal phase. एंड ये है प्री Premenstrual. प्रीमेंस्ट्रुअल. समझ में आया? तो व्हाई आई हैड टू स्प्लिट इट ना. अब Yes, यहाँ sir. देखिए मजा. Yes. देखो ये सब चीजें जो है ना, ये सब जजेस को लाइक करने से ही मिलता है. नाउ अब 28th डे में हार्मोन्स, ऑल हार्मोन्स क्या होगा? लो. सबका कंसंट्रेशन क्या होगा? बोलो. कम हो जाए. Low लो होगा. होगा ना, जीरो होगा. यस सर. ऑल Yes, sir. हार्मोन्स लो होगा. तो फर्स्ट डे क्या होगा? FSH क्या? Rise करेगा. starts. Okay, FSH starts. अब समझ में आया? तो why do we treat first day of menses as the first day of the new cycle? Okay, भाई हमने Yes, उसको sir. पहला दिन क्यों? इसमें नंबर 1 विजुअल इंडिकेटर है. मैंने अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो ना डेज, तो आप जान जाओगे कि सिंस मेंसेस हैव अकर्ड, तो ये इट इज इजी टू आइडेंटिफाई कि ये पहला दिन है. अदरवाइज देयर आर डिफरेंट सिम्टम्स आल्सो. जैसे बिहेवियर अलग अलग होगा. सपोज आई प्रपोज ए गर्ल ऑन 14th, शी विल एक्सेप्ट माय ऑफर. ओके, वो मान जाएगी. बट सपोज आई प्रपोज ए गर्ल इन द फर्स्ट 5 days, वो स्लिपर मार देगी. अंडरस्टूड? तो बिहेवियर वाइज भी हम जान सकते हैं, बट इज इट रिलायबल? है कि नहीं? तो इसीलिए जब हम लोग डेज काउंट करते हैं, हमें विजिबल इंडिकेटर चाहिए होता है. तो इसलिए FSH स्टार्ट होता है. नाउ ऑल हार्मोन्स लो होता है. ठीक है? तो इस केस में भी सारे हार्मोन्स लो होंगे, बट FSH अपना गाड़ी स्टार्ट कर देगा. ओके, तो इसलिए जो मेंस्ट्रुअल पीरियड है, ये बेसिकली FSH पीरियड होता है. FSH पीरियड. ठीक है? तो ये आपका FSH क्या करता है? आपके फॉलिकल्स को रीस्टार्ट करता है. ओके, न्यू फॉलिकल्स. तो जैसे न्यू फॉलिकल बनेंगे, वो क्या रिलीज करेंगे? एस्ट्रोजन. है कि नहीं? तो 5th डे क्या होगा आपका? FSH लो बट राइजिंग. धीरे धीरे उठ रहा है. LH लो. एस्ट्रोजन starts and progesterone very low. Okay, progesterone levels are very low. क्योंकि NCERT Very बोलता है प्रोजेस्ट्रॉन ये अलग अलग आते हैं, बट एक्चुअली प्रोजेस्ट्रॉन बन रहा है, इसका मतलब है कि एस्ट्रोजन भी बन रहा है. एस्ट्रोजन बन रहा है, इसका मतलब प्रोजेस्ट्रॉन भी दूर है. तो प्रोजेस्ट्रॉन भी बन रहा है. कोई शक? सो दैट इज द कंसेप्ट. No, sir. इसलिए मेन चीज यू शुड नो दैट दे आर सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स. दे ऑलवेज वर्क टुगेदर.
ये पता नहीं इसको क्या होता है। फाइन, दे आर सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स। तो ये मैं 5th डे का स्टोरी बता रहा हूँ। हाँ, इन दिनों में क्या होगा बोलिए, FSH राइजिंग, ओके, LH लो, एस्ट्रोजन राइजिंग एंड प्रोजेस्टेरॉन लो राइजिंग। Throughout. धीरे धीरे वो राइज कर रहा होगा, बट वो लो Yes. होगा, कंसंट्रेशन बहुत कम है, बट धीरे धीरे राइज कर रहा होगा। ओके, लो बट राइजिंग। क्यों? क्योंकि जो टिश्यू एस्ट्रोजन बनाता है हाई, वो प्रोजेस्टेरॉन भी बनाता है बट लो। अंडरस्टूड? तो ये दोनों सिनर्जिस्टिक हार्मोन्स हैं एंड ये दोनों साथ साथ आते हैं। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर टू वाइफ्स ऑफ द सेम हस्बैंड, ये आप समझ के चलिए। ठीक है, तो अब 11th डे क्या होता है? तो 11th डे FSH जो है, देखो 14th को अगर ओव्यूलेशन हो रहा है तो 13th को LH पीक करेगा। तो अगर 13th को LH पीक करेगा तो 12th को FSH पीक करेगा। ये सब 24-24 घंटे का डिफरेंस है। ओके, तो याद रखेंगे। तो FSH राइजिंग कॉमा स्टार्ट्स टू क्लाइम on 11, okay, peaks on 12 and falls back to low on 13। देख रहे हो? तो ये सब आपको नॉन जेजेस क्लासेस में नहीं पता चलेगा। क्लियर? तो ये आपका पहला पॉइंट है FSH वाला, मतलब वो पीक करेगा किस दिन? 12। बट याद रखेंगे एनसीईआरटी में हर चीज, FSH भी 14 को पिक करेगा, LH भी 14 को पिक करेगा एंड ओव्यूलेशन भी 14 को हो जाएगा। जय निशिपद्मा। चलिए, ओके, अब वो कैसे होता है वो निशिपद्मा ही जाने। ना उसके बाद LH क्या होता है? लो। LH विल बी लो बट starts to climb on what? बोलिए 12th. 12। क्योंकि जिस 12. दिन एस्ट्रोजन आने का मतलब क्या है, वो FSH वो LH को बुलाता है, आजा आजा। ओके, Yes. so like that LH low starts to climb on 12, peaks on 13 and falls back to low on 14। 40th. तो ये फिर नीचे गिर जाएगा। उसके बाद एस्ट्रोजन राइजिंग कॉमा पीक्स ऑन, जिस दिन ये उस दिन 12। तो LH FSH जिस दिन पीक करेगा एस्ट्रोजन भी उसी दिन पीक करेगा। ओके, एंड फॉल्स स्लोली, ये धड़ से फॉल नहीं करेगा, ये धीरे धीरे कमेगा। तो एस्ट्रोजन का पीक है आपका 12th डे, LH का पीक है आपका 13th डे। आई विल शो यू दिस थिंग्स, ओके, ऑन द 13th। समझ में आया? एंड प्रोजेस्टेरॉन क्या होगा? वही प्रोजेस्टेरॉन low. will be low but rising। ओके, वो कम होगा बट धीरे धीरे बढ़ रहा है। कोई शक? No, तो sir. ये सब चीजें चलो बड़ा